इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2331 0464. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the city, that is 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, अमरीश सक्सेना। नमस्कार। आरती खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 23314444 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं एस रंगभाष्यम। Thank you, Ambrish. The top stories. Foreign investors pump in over 18,500 crore rupees into the Indian debt market so far in February. Women power of India is touching new heights of progress, says Prime Minister Narendra Modi. And Brent crude oil prices declined 2% this week. विदेशी निवेशकों ने फरवरी में अब तक भारतीय डेट बाजार में 18,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य इस सप्ताह 2% गिरा। And now for all the details. Prime Minister Narendra Modi today said that Women Power of India is touching new heights of progress. Speaking about the International Women's Day to be celebrated on the 8th of next month, Prime Minister Modi said that women have demonstrated their leadership abilities in natural farming, water conservation and sanitation. He said this while addressing the nation in his radio program Man Ki Baat. Mr. Modi highlighted that young entrepreneurs are also working on new innovations for wildlife conservation and ecotourism. Mr. Modi announced that the National Creators Award has been started in the country to honor the talent of content creators. Akar, to talk about the stock markets and the mutual funds, now that the Sensex and Nifty have reclaimed their earlier levels and record levels at this level, what would you say, your advice, although we always tell our listeners and investors to go through mutual funds, but should they kind of keep their SIPs on, or it's time to kind of shut off for some time and then maybe re-enter after a couple of months? No, they should not stop their SIPs. In fact, this is a time when they should continue with their SIPs. So the whole fundamental of SIP is to, invest in markets through the ups and downs and average the cost of purchase. Okay. As far as the money being invested is meant for the long-term goals, which is like at least 5 years away, they should definitely continue with their SIPs.
Okay, because at times people talk about this, that clearly the markets are at a high. Yeah. So why invest? Maybe we wait for a month or two for a correction, and then you can have better valuation when you invest. So the basic premise behind it is that no one can time the market perfectly, and right now, though it is at a higher level, there is no guarantee that it may not climb any further. Only if you have hindsight, you can say with guarantee that it will fall in valuation or something of that sort. What if the market doesn't fall? You will again lose on the opportunity. Okay. So according to you, the best thing is to continue with SIP irrespective of markets achieving newer heights. Yes, definitely. Okay. We'll start taking phone calls in a while from now. But just to, put things in the right perspective, we always have, our listeners calling up and through other media telling us that, for a beginner, how should one move about investing in mutual funds if a person is, looking at covering the entire spectrum of the market? So, first of all, the first thing which they should, decide on is the purpose of the investment and the investment horizon. They should ask this question from themselves, that for what purpose are they investing this money? When would they need this money? If the question is after 5 years they would be needing this money, then comes the equity funds. And for equity funds, for a first time investor, it's aggressive hybrid funds they should be going for. So aggressive hybrid fund is primarily a mix of equities and fixed income. Around 70% of the money is invested in equities and 30% is invested in fixed income. So why aggressive hybrid for a first time investor? It's basically because a little allocation of fixed income cushions the downfall during sharp market declines. At the same time, since they invest about 2/3 of the money in equities, they help you get a higher return over the long term. Right. लेकिन आकार जो भी जैसा अभी रंगा ने कहा कि अगर नया कोई इन्वेस्टर है उसको अगर म्यूचुअल फंड की उतनी समझ या जानकारी नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो सीधा अपना इन्वेस्टमेंट करे या कहीं से कोई मदद ले सकता है, या क्या अप्रोच होना चाहिए उसका? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्होंने कभी भी पहले इन्वेस्ट नहीं किया है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के देखिए दो तरीके, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। तो रेगुलर प्लान में सहूलियत ये होती है कि आपको वहाँ पे जो भी पेपर वर्क है वो कराने के लिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है और वो आपकी सहायता कर देता है सही स्कीम चुनने में। तो उसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट की कोई जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि स्टॉक्स के केस में होता है, बल्कि म्यूचुअल फंड का काम ही वो ये है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए भी ये एक ऐसा व्हीकल है जो इक्विटी का बेनिफिट दिलाने में मदद करता है। तो शुरुआत करने के लिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन था, सिर्फ यही चीज़ है कि सबसे पहले आप ये पूछिए अपने आप से कि आपको ये पैसा 5 साल के बाद चाहिए कि नहीं। अगर 5 साल के बाद है तो इक्विटी फंड्स है आपके लिए। और एक आपको शुरुआत में सबसे पहले KYC कराने की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ एक बार होती है और उससे फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वैसे तो आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है, बट अगर आप ऑनलाइन सेवी नहीं है या आपको बिल्कुल ही मतलब आइडिया नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है, कौन सी स्कीम है, अग्रेसिव हाइब्रिड क्या है, तो बेहतर है आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले लीजिए, वो आपका इनिशिएट करा देंगे। और अगर आपको इन सब की जानकारी है, आप DIY इन्वेस्टर है, तो ऑनलाइन जाइए, कैम्स की वेबसाइट या फंड हाउसेस की वेबसाइट से अपना KYC कराइए और उसके बाद आप सीधे एक अच्छा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड पकड़ के शुरुआत कर सकते हैं। राइट, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टेकिंग फोन कॉल्स। वी हैव अनिल जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग अनिल एंड वेलकम टू मार्केट मंत्र। हेलो अनिल, डू वी हैव यू ऑन लाइन? I think we have lost contact with Anil. Never mind. Happens in a live program like this. We have our next caller. We have Ranjan joining us from Delhi. Good evening, Ranjan. And what's it that you want to talk about? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक PACL इंडिया लिमिटेड में मैं निवेश किया था जी 12,000 रुपए। तो सर पता चला है कि वो पैसे मिल रहा है, तो ये मुझे जानना है कि ये पैसे मिल रहा है तो क्या करना होगा इसके लिए। एक बार आप अपना सवाल दोहरा देंगे? सर, मैं PACL इंडिया लिमिटेड में 12,500 रुपए का निवेश किया था
जो कि 2013-14 ओके, में जो कंपनी पर्ल क्लोज हो एग्रो गई था, शायद। PACL, उसकी बात कर रहे हैं, जो डूब गया था। बाद में फिर उसमें कुछ कुछ चीज़ें हुई, जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड करने की बात है। वुड यू लाइक टू कमेंट, ऑल्दो नॉट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड एट ऑल? नहीं, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू नो इश्यूज। या और इस बीच मुंबई से हमारे श्रोता अमित हमसे जुड़ गए हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार। मेरा सवाल है, दो सवाल है ये। एक सवाल है कि पहले आपने इक्विटी और हाइब्रिड फंड बोला है, इक्विटी और हाइब्रिड में क्या फर्क है, थोड़ा और समझाइए। और निप्पॉन का जो फंड है, स्मॉल कैप फंड, इस बारे में आप क्या बताओगे सर? देखिए, जो इक्विटी और आपका हाइब्रिड फंड है उसमें सीधा सीधा अंतर यह है कि जो एक हाइब्रिड फंड होता है वो मिक्सचर होता है इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का। इक्विटी यानी कि वो खाली कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करता है, और फिक्स्ड इनकम यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं या और डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें निवेश करता है। तो एक हाइब्रिड फंड दोनों का मिक्सचर होता है, और जो एक इक्विटी फंड है वो केवल कंपनी के स्टॉक्स में पूरा पैसा लगाता है। अब हाइब्रिड फंड में भी कई तरह के हाइब्रिड फंड होते हैं और उनमें अलग अलग प्रपोर्शन मिलता है। जैसे मैंने नाम लिया था अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का, उसमें आमतौर पे 70% के आसपास आपका पैसा इक्विटी में लगता है और 30% आपका पैसा जो है वो आपका फिक्स्ड इनकम में लगता है। Right. Well, listeners, you are tuned in to Market Mantra on Akashvani. It's time now for a quick commercial break. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back, listeners, and you are tuned in to our Sunday edition of Market Mantra, where we are focusing on mutual fund and related issues. We have our mutual fund expert, Akar Rastogi, joining us in the studios. And just for you who have switched on or tuned in later, we want to share our phone numbers with you. Our phone numbers are 2331 4444, and we have a second line as well. That's 2331 0464. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. So listeners, if you have any queries, questions or doubts related to mutual funds, just pick up your phone and talk to our expert in the studios here. जी, और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार आप सभी को। मेरा ये सवाल है कि सर, जो डायरेक्ट फंड होता है, डायरेक्ट प्लान जो होता है म्यूचुअल फंड का, और जो रेगुलर प्लान होता है, इन दोनों में एक्सपेंस रेशियो में तो फर्क होता ही है। इसके अलावा ये एक्सपेंस रेशियो का फर्क एक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे पता लगेगा? फर्स्ट के लिए एनएवी जो है एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट की वो 170 है इस वक्त। मुझे लगा कि रेगुलर प्लान की ज्यादा एनएवी होगी तो उसमें एक्सपेंस ऐड होगा, बट उसकी एनएवी 151 रुपए है, तो कम एनएवी है। और अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए म्यूचुअल फंड में और एक सर्वर निकाले, तो एक्सपेंसिव तो क्या हर हफ्ते हर महीने डिटेक्ट होगा या फिर वन टाइम डिटेक्ट होगा? Yes, Sakar. देखिए, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, सबसे पहले आपका सवाल कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस है उसमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा, तो ये आपका जो फंड है उसकी फैक्ट शीट में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस कितना है और रेगुलर प्लान का कितना है। नहीं तो आप जो फंड हाउस है उसकी वेबसाइट पे जाके स्कीम डिटेल्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है। और रही बात कि ये कैसे डिडक्ट होगा, एक साथ होगा या डेली होगा, तो जो आपका एनएवी होता है वो एनएवी आपका ऑलरेडी एक्सपेंसेस के लिए एडजस्टेड होता है। तो जो एक एनएवी हमारा कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला यही होता है कि दिन के आखिर में जो भी सारी सिक्योरिटीज़ है उनकी मार्केट वैल्यू में से जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करके और आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट प्राइस आता है। तो वो ऐसा नहीं है कि अलग से किसी टाइम कटेगा, वो रोज़ाना आपके एनएवी में से कटता जा रहा है, और जो एनएवी है वो नेट ऑफ एक्सपेंसेस ही होता है। Right, let's move on and take our next caller. We have Sanjay joining us from Mumbai. Good evening, Sanjay, and welcome to Market Mantra. Sir, I am invested in Nasdaq 100 fund.
it is total 30% of my total portfolio and 100% of my international portfolio. In 1.5 years, it has given 50% return. And now it appears to be overvalued, such as like as a small cap in India. So should I exit or should I stay on? And if I exit or do balancing, I have to pay 30% tax. Please advise what I should do. I am an aggressive investor and my investment margin is 10 years. Yes, Sakar. Yeah, so see, as far as you do not need this money, there is no need to, exit completely, because as I mentioned at the starting of the program, we really do not know that whether markets will continue to rise or whether they will fall. At the most, what you should be doing is that, just work out an asset allocation plan, and particularly for the equity portion of the portfolio, what we say is that the international allocation should be somewhere around 20 to 30%, approximately. So if it has gone beyond that, then it is time to, maybe dilute some and invest in domestic equities. And if it is well within the range of, say, 20 to 30%, then you can continue with the same. और इंदौर से हमारे श्रोता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी सर, हमारा सवाल ये है कि हम एक बैंक में नौकरी करते हैं। आप का अगर आपने रेडियो सेट ऑन किया हुआ है तो उसका वॉल्यूम कम कर लीजिए, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। घर से बाहर हूँ, कहीं पे भी नहीं चलता। जी बोलिए। हाँ, तो हम कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करते हैं। जी हेलो, हाँ हम सुन रहे हैं, बताइए। बोलिए। बैंक पे नौकरी करते हैं और हमारी कोऑपरेटिव बैंक में जो मध्य प्रदेश में जो कोऑपरेटिव बैंक है, उसका नियम ये है कि रिटायरमेंट के 4 साल पहले से यहाँ से पेंशन शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है। अनिल जी हमारा आज का जो अनिल जी पेंशन मिलती है, जो पीएफ से कटौती होता है वहाँ पेंशन मिलती है, तो जो 3005 रुपए के आसपास या जो अधिकारी है उनको 4000 इतनी ही मिलती है। जी, जो बैंकों के कर्मचारी है, सवाल क्या है अनिल जी आपका? सवाल क्या है? सवाल ये है कि सरकार की कौन सी नीति है जिसके कारण तो बैंकों के कर्मचारी। I think he's talking about the cooperative banking sector and the remuneration and pension and the employee benefits. Obviously, it doesn't fall in our domain of mutual fund and related issues. Never mind. Let's move on and take our next caller. We are joined by Jitendra from Jaipur in Rajasthan. Good evening, Jitendra, and welcome to Market Mantra. हाँ, थैंक यू सर। मैं ये बोलना चाहता कि अगर कोई इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है और एनपीएस में रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको कौन सा फंड मैनेजर चुनना चाहिए, कौन सा ठीक रहेगा? ऊपर से 2-3 बता देते तो अच्छा रहता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस 2 मिलेंगी, एक ऑटो चॉइस होगी और एक एक्टिव चॉइस होगी। ऑटो चॉइस में होता क्या है कि आपकी एज के हिसाब से वो आपका असेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज करते रहते हैं, और उसमें भी 3 प्लान होते हैं आपके, अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। लेकिन जो एक्टिव चॉइस है उसमें आपको पूरी छूट दी जाती है कि आप अपना असेट एलोकेशन खुद चूज कर सके। इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 75% लगा सकते हैं, और आमतौर पे हम यही कहते हैं कि अगर आप अपने रिटायरमेंट से, क्योंकि ये एक रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने की स्कीम है और 60 साल की उम्र के बाद ही आपको पैसा मिलता है, तो अगर आपकी रिटायरमेंट में 5, 7, 8 साल से ज़्यादा है तो पहली चीज़ तो जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप उसमें एक्टिव चॉइस चुनें, और एक्टिव चॉइस चुनने के बाद मैक्सिमम एलोकेशन जो कि आप 75% तक कर सकते हैं इक्विटी में करें और बाकी का फिक्स्ड इनकम में करें। रही बात कि आप उनमें से कौन सा पेंशन फंड हाउस चूज करें, तो देखिए जो रिटर्न्स है मोस्टली वो सबके सेम है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, सभी उसमें अच्छी स्कीम्स है। बट अगर आप देखें तो इक्विटी में HDFC का बहुत अच्छा प्रदर्शन देता है तो आप HDFC चुन सकते हैं। और पहले एक ये लिमिटेशन थी कि आपको अपने तीनों स्कीम्स के लिए, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एक ही पेंशन फंड मैनेजर रखना होता था, मगर अब आप अलग अलग चुन सकते हैं।
तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड वाला पार्ट है उसके लिए ये देखा गया है कि LIC का बहुत बढ़िया रहता है, इक्विटी के लिए HDFC, और कॉर्पोरेट बॉन्ड का भी HDFC और ICICI भी बढ़िया है, तो आप इनमें से चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आकार जी, अगर अलग अलग फंड मैनेजर चुना तो फाइनली पेंशन कैसे, मतलब किस तरह से निर्धारित होगी? देखिए, अभी बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी एक तरीके की, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में NAV होती है, इनकी NAVs होगी, आपको यूनिट्स मिलेंगे और आपका कॉर्पस बिल्डअप होएगा। फिर जब आपकी 60 साल की उम्र हो जाती है, या अगर आप 75 तक उसको डेफर भी कर सकते हैं, तब जो भी आपके कॉर्पस की वैल्यू होएगी, हमारे को ऑप्शन मिलती है। पहली चीज़ ये मिलती है कि आप उसमें 60% तक का पैसा या तो लमसम निकाल ले, या अभी एक रिसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है, आप उसको एक फेज्ड मैनर में निकाल सकते हैं। जो पेंशन के लिए अमाउंट है वो आपका 40% का होता है, जिससे कि आपको एक पेंशन खरीदनी होती है। तो वो पेंशन प्लान खरीदने के लिए भी कुछ कंपनियों को वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा हुआ है। तो जो आपके कॉर्पस की वैल्यू होगी, आमतौर पे हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि आपका 1 लाख का कॉर्पस था, 40% यानी कि 40,000 है, तो आप उस 40,000 रुपये से एक वो पेंशन प्लान खरीदते हैं। तो वो जो आपको पेंशन देगा, वो जो एक एन्युटी पेंशन प्रोवाइडर है वो देगा, वो जो कि यूजुअली एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, तो वहाँ से मिलेगी। तो इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। और मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छे रिटर्न के साथ साथ NPS आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। Welcome back, listeners. You are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on Akashvani. Let's continue with our phone calls. We have Abhishek joining us from Delhi. Good evening, Abhishek. And what's it that you want to talk about? Good evening, sir. Sir, I just wanted to check, know from the guest that, sir, is it mutual fund which should we go for, or is it index funds which should we go for time horizon of 15 to 20 years? Yes, Sakar. Yeah, so see, the basic difference between both index fund and an actively managed fund is that an index fund follows a passive investment strategy, which means that it simply replicates the chosen market index. So just to give you an example, if an index fund is replicating Sensex and a company enters into Sensex with an allocation of 10%, the index fund would do the same. It will simply replicate. And in case of an actively managed fund, there is no such restriction. In fact, the fund manager, applies his brain, his skills, and his knowledge, his, intuition, like where to invest and, how much to invest. So, if you're investing for a 15 to 20 year period, actively managed fund is likely to give you better returns. Specifically in India, because indexes are slightly, not that mature as of now. So, just to answer your question, I would say if you have a 15 to 20 year period, you should go for an actively managed fund and pick a flexi cap fund. They are diversified equity funds which invest in companies of different sizes, large, mid, and small, across different sectors. Yeah. Let's take our next caller. We have Sanjay joining us from Mumbai. Earlier he had called up, but there was some issue. Now let's see if we get him through. Yes, Sanjay, welcome to the program. Yes, sir. In continuation of my earlier question, I want to ask that about a NASDAQ 100 fund. Actually, my initial allocation was 30%, but because of price rise, now it has gone to 40%. The thing is, the issue is, if I do asset allocation and rebalancing, then I have to pay 30% tax because it's an international fund. So, should I pay 30% tax and do rebalancing, or should I leave it like that? Yes, sir. So first of all, it is not necessary that you have to sell your allocation in the Nasdaq 100 fund to rebalance your portfolio. It can also be done incrementally. What you can do is that if you are investing on a regular basis through SIPs,
for the coming few months or say a year or so, you can reduce the amount of your SIP contribution which is going into the Nasdaq 100 fund, and likewise increase it for the domestic equity exposure. That will automatically bring the asset allocation in place. Having said that, even 40%, so I mean it's fine. Like, I mean, first of all, I would suggest that you decide on your allocation, which in an ideal case is around 25 to 30%, and I mean just that. So it's not necessary that you sell your invested money in it to rebalance your portfolio. It can be done incrementally. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता संजीव लाइन पे हैं, उनसे अनुरोध है कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। तब तक हम लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। भारतीय डेट बाजार में विदेशी निवेशकों की रुचि बनी हुई है। सिर्फ फरवरी में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट बाजार में 18,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन इसी अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों से 424 करोड़ रुपए निकाल लिए। इससे पहले जनवरी में भारतीय डेट बाजार में 19,836 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जो कि 6 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान सबसे बड़ा मासिक निवेश था। इससे पहले जून 2017 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट बाजार में 25,685 करोड़ रुपए डाले थे। पिछले वर्ष के अंतिम 3 महीनों के दौरान भारतीय डेट बाजार में दिसंबर में 18,302 करोड़ रुपए, नवंबर में 14,860 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 6,381 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। And we have Sanjeev joining us from Ghaziabad. Sanjeev, we are moving towards the end of the program. Please put your question quickly. Hello, yes Sanjeev, do we have you online? Yeah, sir. Yeah, go ahead. Put your question quick. Yeah. Sir, my question is like कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का एक लिमिट होती है कि उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने एक्सपेंस में दिखा सकते हो कंपनी के। तो क्या म्यूचुअल फंड में कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें एम्प्लॉय मतलब लाइक डायरेक्टर और पार्टनर कुछ अपने एक्सपेंस में दिखा दे और वो इन्वेस्टमेंट दिखा सके उसको? Yes, Sakar, what would you say? देखिए, नहीं, इसकी जानकारी इतनी मेरे को नहीं होगी कि आप उसको एक्सपेंस में दिखाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा भी तो आमतौर पे वो आपके CTC का ही पार्ट होएगा। बाकी उसको आपका बैलेंस शीट में एम्प्लॉयर कैसे दिखाता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। No issues. And Akar, we have another question which has come to us this is about a specific mutual fund, the Tata's multi-asset opportunity fund, and the person wants to know, this is Sanjay Kumar, he wants to know that how good is this fund? Very quickly, very briefly if you could tell. So, see, Tata Multi-Asset Opportunities Fund basically invests across 3 asset classes: equities, fixed income, and gold. So within the category, it's a good fund. It's an average fund, has given a return of around 28% over the last 1 year. Yeah. But right. Fine. We are moving towards the end, and very quickly, the third headline story. Brent crude oil futures declined 2% during the week to end at $81.62 per barrel, while US crude oil prices also fell 3% during the week to close at $76.49 per barrel. And with that, we come to the end of this program. We would like to thank all our callers for their active participation in today's program. And Akar, thank you so much for joining us in the studios. Thank you. And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pump in over 18,500 crore rupees into the Indian debt market so far in February. Women power of India is touching new heights of progress, says Prime Minister Narendra Modi. And Brent crude oil futures declines 2% this week. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra, Market Mantra.